اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پاکستان آج ایک بے یقینی کسی کیفیت میں ہے، کسی کو نہیں پتا کہ اگلی صبح کیا ہونے والا ہے۔ ہم سنتے آتے تھے کہ بھائی پولیٹیکل ڈیسٹیبلائزیشن جو ہے، بے یقینی ملک کی اکانومی کے لیے اچھی چیز نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر اس کا کوئی عملی نمونہ اگر کسی کو دیکھنا ہے تو وہ آج کے حالات پاکستان کے دیکھے کہ ہر ایک گھنٹے کے بعد ایک ایسی بات آتی ہے جس سے ملک ڈیسٹیبلائز ہو جائے۔ آپ کو پتا ہے کہ سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ نقصان کر رہا ہے، کریش کر رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ بزنسز جو ہیں وہ بالکل اسٹینڈ اسٹل ہو گئے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ نئی انویسٹمنٹ آ نہیں رہی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جو انویسٹمنٹ ہے وہ نکل کر باہر جا رہی ہے۔ ایسے حالات میں کون اپنا پیسہ لگائے گا، کون اپنی انویسٹمنٹ کرے گا؟ تو ایٹ دس مومنٹ اگر ساری سیاست میں، ساری پوائنٹ اسکورنگ میں صبح سے لے کر رات تک اور رات سے اگلی صبح تک حکومت اور اپوزیشن کی تمام جماعتیں ایک دوسرے کو چور، ڈاکو اور ایک دوسرے کو نیچا گرانے میں لگے ہوئے ہیں، اور رات کو جو ہے وہ وکٹری اسٹینڈ پر کھڑے ہو کر اس کے بعد سو جاتے ہیں۔ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے نقصان ملک کا ہو رہا ہے، نقصان عوام کا ہو رہا ہے، اس لیے کہ اس تمام گفتگو میں، ان تمام کارروائیوں میں عوام کی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے۔ 25 کروڑ لوگوں کی کوئی بات نہیں ہو رہی۔ کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ کس کے گھر میں بھوک ہے، کسی کو فکر نہیں ہے کہ کہاں پر کسی کو دوا چاہیے، کسی کو سکول چاہیے، کسی کو روٹی چاہیے، کون مر رہا ہے، کون جی رہا ہے، کسی کو فکر نہیں ہے۔ کسی حکمران طبقے کو، کسی اپوزیشن کی جماعتوں کو، پارلیمنٹیرینز کو، کسی کو یہ فکر نہیں ہے۔ سب کو یہ فکر ہے کہ کس طرح سے اپوزیشن والوں کو یہ فکر ہے کہ حکومت کیسے گرائیں، حکومت والوں کو یہ فکر ہے کہ کسی طرح سے اپوزیشن کو کس طرح سے بند کریں، چور کہیں، ڈاکو کہیں، بند کریں۔ اس تمام معاملے میں اگر کسی کی پہلی ذمہ داری آتی ہے تو یقیناً وہ حکومت وقت کی آتی ہے کہ حکومت وقت ایسے حالات پیدا کریں، ایسی باتیں کریں، ایسا ماحول پیدا کریں جہاں پر ریکنسیلیشن ہو، جہاں پر تمام جو کہ جیتی ہوئی جماعتیں پارلیمنٹ میں بیٹھی ہیں ان کو ساتھ لے کر ملک کے لیے کوئی کام کیا جائے۔ لیکن غضب خدا کا کہ وزیر اعظم جب بھی بولتے ہیں، جب بھی بات کرتے ہیں، ساری امیدوں پر پانی پھیر دیتے ہیں۔ آخری جو ان کی تقریر ہے ووٹ آف کانفیڈنس کے بعد، انہوں نے سب کو ڈاکو کہہ دیا، چور کہہ دیا، سب کو کرپٹ کہہ دیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بھائی وزیر اعظم اگر قوم کو یہ بتا رہے ہیں کہ فلاں ڈاکو ہے، فلاں چور ہے، تو اس چوروں کو پکڑے گا کون؟ ان ڈاکوؤں کو پکڑے گا کون؟ اب کیا یونائٹڈ نیشن کی فوج بلانی ہے کہ یہاں پاکستان میں؟ بھائی اگر یا تو ہمیں بتاؤ نہیں تو ہم تسلی سے سو جائیں گے کہ بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ چور ہیں، ڈاکو، لیکن جب آپ ہمیں بتا رہے ہو کہ یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، ابے تو چوروں کو پکڑے گا کون؟ بھائی وزیر اعظم ہی جب کمپلین کر رہا ہے تو پھر یہ ملک کے 25 کروڑ لوگ کہاں جائیں گے؟ آپ نے تو یہ کہہ کر بار بار یہ کہہ کر کہ فلاں چور ہے، ڈاکو، اور وہ آرام سے پھر رہا ہے، تو آپ نے تو اس ملک کے لوگوں کی ہوپ، جو امیدیں ہیں، اس کو آپ نے فارغ کر دیا۔ میں کوئی اور جملہ کہنا چاہتا ہوں لیکن فارغ کر دیا ہے۔ اب ہم کس سے فریاد کریں کہ آپ کو پتہ ہے اور آپ کچھ کر نہیں سک رہے؟ تو خدا کے واسطے وزیر اعظم صاحب، بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ یہ چور ڈاکو جن کو آپ کہہ رہے ہیں، ان کو لوگوں نے ووٹ دے کر اسمبلیوں میں پہنچا دیا ہے۔ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، خدا کے واسطے آپ ان سے بات کریں اور عوام کے لیے بات کریں، اپنے لیے بات نہ کریں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کی ایگو، آپ کی انا بالکل سپریم ہے، لیکن آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر ملک میں ریفارمز کی بات کریں۔ سب سے پہلے آپ اگر آپ جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں تو اس ملک کے الیکشن کے پروسیس کو ایسا بنا دیں کہ جہاں پر ایک عام آدمی کا اعتماد آ جائے کہ میرا ووٹ جدھر میں ڈالوں گا وہیں سے نکلے گا اور میرا ووٹ ضائع نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے الیکٹورل ریفارم کی ضرورت ہے، اور اس الیکٹورل ریفارم کے لیے آپ کو ان تمام جن کو آپ چور ڈاکو کہہ رہے ہیں یہ اسمبلیوں میں موجود، ان کی ضرورت پڑے گی۔ دوسری بات آپ یہ کریں خدا کے واسطے
کہ دیکھیں اس ملک میں اس وقت تک بھلائی نہیں آ سکتی, آپ بھلے فرشتے لے کر آ جاؤ, کیوں اس وقت تک بھلائی نہیں آ سکتی جب تک آپ آئین میں لوکل گورنمنٹ کا ایک چیپٹر انکلوڈ نہ کرو. ملک میں ابھی پرابلم کیا ہے کہ وزیر اعظم آتا ہے, عہد اٹھاتا ہے, کام شروع کر دیتا ہے, کیونکہ آئین میں اس کے کام کرنے کے سارے طریقے لکھے ہوئے ہیں. وزیر اعلیٰ آتا ہے, الیکٹ ہوتا ہے, آتا ہے, اگلے دن سے کام شروع کر دیتا ہے, اس لیے کہ پروونشل گورنمنٹ کے سارے رولز آف بزنس لکھے ہوئے, آئین میں لکھے ہوئے. مسئلہ کہاں آتا ہے؟ جب آپ کے پاس لوکل گورنمنٹ کا کوئی آدمی آتا ہے, اگلے دن سے اس کو پتہ ہی نہیں, اختیارات کی جنگ چھڑ جاتی ہے, مسائل آ جاتے ہیں کہ بھائی میرے پاس یہ ہے یہ نہیں ہے, اس لیے کہ آئین نے صرف 4 لائنیں لکھ دی ہیں آرٹیکل 140A. اس 4 لائنوں کو وزیر اعلیٰ پروونشل گورنمنٹ اپنی مرضی سے اس کی تشریح کرتے ہیں اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. تو پاکستان کے لوگوں کی دہلیزوں تک مسائل کے حل کو پہنچانے کے لیے آئین میں لوکل گورنمنٹ کا ایک چیپٹر انکلوڈ کرنا لازم ہے. جس طرح سے وفاق کی حکومت کا وفاق کی کو چلانے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کا چیپٹر ہے, صوبائی گورنمنٹ کا چیپٹر ہے, اسی طرح سے لوکل گورنمنٹ کا آئین میں ایک چیپٹر انکلوڈ ہونا چاہیے. اب یہ کرے گا کون؟ آسمان سے فرشتے تو آئیں گے نہیں, یہی اسی پارلیمنٹ نے کرنا ہے. پارلیمنٹ اس وقت کر پائے گی جب آپس میں مل کر بیٹھ کے بات کریں گے. یہ ہیں عوامی مسائل, یہ ہیں عوامی ایشوز جن سے پھر آپ ہیلتھ ریفارم کرو, آپ جوڈیشری ریفارم کرو, پھر آپ ایجوکیشن ریفارم کرو. خدا کے واسطے 2.5 کروڑ بچے اس وقت پاکستان میں جن کی عمر اسکول میں جانے کی وہ اسکولوں سے باہر ہیں. 2.5 کروڑ کی آبادی والے دنیا میں 165 ملک ہیں جو کہ 2.5 کروڑ سے کم کی آبادی کے, یعنی ہم اس ملک میں جاہل بچوں کی ہماری جو تعداد ہے وہ 165 ملکوں سے بڑی تعداد ہے. ہمیں دشمنوں کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی بات نہیں کر رہا اس کے اوپر. 44% سٹنٹڈ گروتھ ہے کہ بچے کا دماغ نہیں بڑھ رہا ڈیو ٹو نیوٹریشن, اس کو پانی نہیں مل رہا, اس کو غذا نہیں مل رہی. پھر سب سے بڑی بات کہ ہمارے پاس پولیس ریفارمز نہیں ہیں, ہمارے پاس ایجوکیشن ریفارم نہیں ہے, ہمارے پاس لوکل گورنمنٹ ریفارم نہیں. یہ وہ کام ہے جو کرنے والے ہیں جو کہ عوام کا جن سے تعلق ہے, لیکن حکومت اور اپوزیشن اپنی لڑائی ختم کرنے کا نام نہیں لے رہے. ابھی تو اس مہینے میں کے کیلنڈر میں مختلف ڈیٹس ابھی لگی ہوئی ہیں کہ بھائی فلاں دن مظاہرہ ہوگا, لڑائی ہوگی, فلاں دن جلوس نکلے گا, لڑائی ہوگی. تو 2.5-3 سال ایسے گزر گئے اور اگلے پتہ نہیں 2 سال بھی اسی چکر میں گزر جائیں. ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں, یہ جو بیوروکریسی بیٹھی ہوئی ہے, اس طرح کی حکومت, اس طرح کی حکمرانی کے اوپر یہ بیوروکریسی تو ایک فائل سائن نہیں کرے گی. ان کو نہیں پتا کہ بھائی آج ہم اس حکومت کی بات مانیں گے, کل کو پتہ نہیں یہ ہوں گے بھی نہیں ہوں گے. ہم نے یہ ایڈمنسٹریشن چلائی ہیں, آپ کو اعتماد دینا پڑتا ہے. نا ایک بات اور میں کرنا چاہتا ہوں کہ اتنا نادر موقع تھا, کراچی کی جو پارٹی ہے MQM جس کے پاس 7 سیٹیں تھیں, 7 سیٹیں ہیں, ان کو وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ چاہیے تھا. آپ کو پتا ہے کہ کتنی تھن میجورٹی ان کے پاس, اس اعتماد کے ووٹ بالکل ان کو دیتے. لیکن وزیر اعظم سے ایک گزارش کرتے کہ وزیر اعظم صاحب, ہمارے شہر کی آبادی کم گنتی گئی ہے اور وہ آپ کی فیڈرل کیبنٹ نے ایک فیصلہ کر لیا ہے جو کہ اسی غلط آبادی کو انڈوس کر دیا ہے. خدا کے واسطے آپ کے ہاتھ میں ہے, یہ کسی پروونشل گورنمنٹ کے ہاتھ میں نہیں ہے, آپ کے ہاتھ میں وزیر اعظم صاحب. اس ڈسپیوٹڈ آبادی کو ڈسپیوٹڈ رہنے دیں. فیڈرل کیبنٹ کے ڈیسیجن کو آپ جو ہے وہ معطل کریں اور 5% آئین میں جو آڈٹ لکھا ہوا ہے اس آڈٹ کو کروا لیں. کراچی کے لوگوں کا مسئلہ حل ہو جاتا. یہ تو اتنی مناسب بات تھی اور آرام سے وزیر اعظم سے اس موقع پہ, جبکہ وزیر اعظم کو ایک ووٹ چاہیے, آپ کے پاس 7 ووٹ تھے, آپ یہ کام آسانی سے آرام سے کروا سکتے تھے. لیکن افسوس کی بات ہے, وہی پرانی جو ہے وہ ڈیمانڈ لیس, وہی پرانی تقریر, یہ موقع بھی ہاتھ سے جانے دیا, یہ موقع بھی ہاتھ سے چلا گیا اور کراچی کے لوگوں کی غلط آبادی کے اوپر انڈورسمنٹ جو ہوئی بھی ہے وہ غلط ہی رہ گئی ہے. یہ بہت بڑا نقصان ہے کراچی کے لوگوں کا. کراچی کی آبادی اگر صحیح گنیں گے تو کراچی کی سیٹیں بڑھیں گی, کراچی کو پانی زیادہ ملے گا, کراچی کو پیسے ایجوکیشن کے زیادہ ملیں گے, ہیلتھ کے زیادہ ملیں گے. اور کراچی کی جو پاپولیشن ہے وہ اتنی پاپولیشن ہے کہ سندھ کی پاپولیشن کا آدھا انسان کراچی میں رہ رہا ہے, 50%. کراچی جو جیتے گا پھر وہ سندھ میں حکمرانی کرے گا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج کی نمائندہ جماعتیں ہیں ان کو یہ موقع تھا, یہ مسائل حل کر سکتے تھے. پاک سرزمین پارٹی
लोगों से ये कहना चाहती है सारी पार्टियां फेल हो गई हैं। हमारे पास ही इस शहर कराची से लेकर कश्मीर तक और कश्मीर से कश्मीर तक पाकिस्तान के लोगों के हालात को बदलने का फॉर्मूला है। हमने प्रैक्टिकली शहर को चलाकर दिखाया है, जो कि 122 मुल्कों से बड़ा शहर है। हमारे पास काम की लेगेसी है, हमारे दामन पे कोई करप्शन का कोई दाग नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पर इल्जाम लगा सकते हैं, साबित नहीं कर सकते। अल्लाह का शुक्र है हमने इस कराची जैसे शहर को बना कर दिखाया है। आज हमारे पास ये रिफॉर्म का एजेंडा पूरा मौजूद है। मैं तमाम पाकिस्तानियों से कहता हूं कि पाक से ज़मीन पार्टी का साथ दें। इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में सही मायनों में, हकीकी मायनों में तब्दीली, जो कि घरों पे लोगों के हालात चेंज होंगे, इंशाअल्लाह ताला पाक से ज़मीन पार्टी ही लेकर आएगी। आपका बहुत शुक्रिया। हम कोयटा में 19 तारीख को जलसा करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला बलूचिस्तान के लोग बड़ी तादाद में कोयटा के जलसे में इंशाअल्लाह ताला शरीक होंगे। अच्छा, 2.5 साल हो गए मौजूदा हुकूमत को, और 2.5 साल से हम आपसे भी सुन रहे हैं कि आप वज़ीर आज़म को ये बार बार मशवरा दे रहे हैं कि अपोजिशन के साथ बैठ के कोई पॉलिसी बनाए। मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी कोई समझ आती कि 2.5 साल तो हो गए उनको, वो क्या चाहती क्या है, हुकूमत किस तरह कर रही है? तो मुझे लगता है कि मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी मौजूदा हुकूमत को भी समझ में नहीं आती शायद, और मुझे तो मैं कोशिश करता हूँ समझने की, लेकिन मेरे समझ में नहीं आती। इसलिए कि सबसे पहली बात है, जो हुकूमत होती है, जब हुकूमत में जब आ जाते हैं तो आप झुक जाते हैं, आप जो है वो लोगों को साथ मिलाकर चलते हैं, आप लड़ाई नहीं करते। लड़ाई तो अपोजिशन करती है। यहाँ तो हुकूमत खुद से लड़ाई के मौके हर दिन नए लड़ाई के मौके दे रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जो हुकूमत को सपोर्ट करने वाले लोग हैं या जो भी लोग हैं, जैसे भी लोग हैं, वो खुद इस रविश से बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। इसलिए कि उनको ये पता है कि ये मुल्क इस तरह नहीं बस मैं यहाँ शुरू करें भाई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पाकिस्तान आज एक बेयकीनी किसी कैफियत में है। किसी को नहीं पता कि अगली सुबह क्या होने वाला है। हम सुनते आते थे कि भाई पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन जो है, बेयकीनी मुल्क की इकोनॉमी के लिए अच्छी चीज़ नहीं होती है। लेकिन अगर उसका कोई अमली नमूना अगर किसी को देखना है तो वो आज के हालात पाकिस्तान के देखे कि हर 1 घंटे के बाद एक ऐसी बात आती है जिससे मुल्क डिस्टेबलाइज हो जाए। आपको पता है कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो नुकसान कर रहा है, क्रैश कर रहा है। आपको पता है कि बिजनेसेस जो हैं वो बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो गए हैं। आपको पता है कि नई इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही है। आपको पता है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो निकल कर बाहर जा रही है। ऐसे हालात में कौन अपना पैसा लगाएगा, कौन अपनी इन्वेस्टमेंट करेगा? तो एट दिस मोमेंट अगर सारी सियासत में, सारी पॉइंट स्कोरिंग में सुबह से लेकर रात तक और रात से अगली सुबह तक हुकूमत और अपोजिशन की तमाम जमातें एक दूसरे को चोर, डाकू और एक दूसरे को नीचा गिराने में लगे हुए हैं, और रात को जो है वो विक्ट्री स्टैंड पर खड़े होकर उसके बाद सो जाते हैं। एट द एंड ऑफ द डे नुकसान मुल्क का हो रहा है, नुकसान आवाम का हो रहा है। इसलिए कि इस तमाम गुफ्तगू में, इन तमाम कार्रवाइयों में आवाम की कोई बात नहीं हो रही है। 25 करोड़ लोगों की कोई बात नहीं हो रही। किसी को यह फिक्र नहीं है कि किसके घर में भूख है, किसी को फिक्र नहीं है कि कहां पर किसी को दवा चाहिए, किसी को स्कूल चाहिए, किसी को रोटी चाहिए, कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, किसी को फिक्र नहीं है। किसी हुक्मरान तबके को, किसी ऑपोजिशन की जमातों को, पार्लियामेंटेरियंस को, किसी को यह फिक्र नहीं है। सबको यह फिक्र है कि किस तरह से, ऑपोजिशन वालों को यह फिक्र है कि हुकूमत कैसे गिराएं, हुकूमत वालों को ये फिक्र है कि किसी तरह से ऑपोजिशन को किस तरह से बंद करें, चोर कहें, डाकू कहें, बंद करें। इस तमाम मामले में अगर किसी की पहली जिम्मेदारी आती है तो यकीनन वो हुकूमत वक्त की आती है कि हुकूमत वक्त ऐसे हालात पैदा करें, ऐसी बातें करें, ऐसा माहौल पैदा करें जहां पर रिकॉन्सिलिएशन हो, जहां पर तमाम जो कि जीती हुई जमातें पार्लियामेंट में बैठी हैं, उनको साथ लेकर मुल्क के लिए कोई काम किया जाए। लेकिन गजब खुदा का कि वजीर आजम जब भी बोलते हैं, जब भी बात करते हैं, सारी उम्मीदों पर पानी फेर देते हैं। आखिरी जो उनकी तकरीर
वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद उन्होंने सबको डाकू कह दिया, चोर कह दिया, सबको करप्ट कह दिया। अब मसला ये है कि भाई वजीर आजम अगर कौम को ये बता रहे हैं कि फलां डाकू है, फलां चोर है, तो उस चोरों को पकड़ेगा कौन, उन डाकुओं को पकड़ेगा कौन? अब क्या यूनाइटेड नेशन की फौज बुलानी है क्या यहाँ पाकिस्तान में? भाई अगर या तो हमें बताओ नहीं तो हम तसल्ली से सो जाएंगे कि भाई आपको पता ही नहीं कि ये चोर है डाकू, लेकिन जब आप हमें बता रहे हो कि ये चोर है डाकू हैं, अबे तो चोरों को पकड़ेगा कौन? भाई वजीर आजम ही जब कंप्लेन कर रहा है तो फिर ये मुल्क के 25 करोड़ लोग कहां जाएंगे? आपने तो ये कहकर बार बार ये कह करके फलां चोर है डाकू और वो आराम से फिर रहा है, तो आपने तो इस मुल्क के लोगों की होप जो उम्मीदें हैं उसको आपने फारिग कर दिया। मैं कोई और जुमला कहना चाहता हूं लेकिन फारिग कर दिया है। अब हम किससे फरियाद करें कि आपको पता है और आप कुछ कर नहीं सक रहे? तो खुदा के वास्ते वजीर आजम साहब, बड़ी मौदबाना गुजारिश है कि ये चोर डाकू जिनको आप कह रहे हैं, इनको लोगों ने वोट देकर असेंबलियों में पहुंचा दिया है, आप इनके साथ बैठें, खुदा के वास्ते आप इनसे बात करें और अवाम के लिए बात करें, अपने लिए बात ना करें। मैं जानता हूं कि आपकी ईगो, आपकी अना बिल्कुल सुप्रीम है, लेकिन आप इनके साथ बैठकर मुल्क में रिफॉर्म्स की बात करें। सबसे पहले आप अगर आप जमहूरियत पर यकीन रखते हैं तो इस मुल्क के इलेक्शन के प्रोसेस को ऐसा बना दें कि जहां पर एक आम आदमी का एतमाद आ जाए कि मेरा वोट जिधर मैं डालूंगा वहीं से निकलेगा और मेरा वोट जाया नहीं होगा। तो उसके लिए इलेक्टोरल रिफॉर्म की जरूरत है, और उस इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए आपको इन तमाम जिनको आप चोर डाकू कह रहे हैं ये असेंबलियों में मौजूद, इनकी जरूरत पड़ेगी। दूसरी बात आप ये करें खुदा के वास्ते कि देखिए इस मुल्क में उस वक्त तक भलाई नहीं आ सकती, आप भले फरिश्ते लेकर आ जाओ, क्यों उस वक्त तक भलाई नहीं आ सकती जब तक आप आईन में लोकल गवर्नमेंट का एक चैप्टर इंक्लूड ना करो। मुल्क में अभी प्रॉब्लम क्या है कि वजीर आजम आता है, ओथ उठाता है, काम शुरू कर देता है, क्योंकि आइन में उसके काम करने के सारे तरीके लिखे हुए हैं। वजीर आला आता है, इलेक्ट होता है, आता है, अगले दिन से काम शुरू कर देता है, इसलिए कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के सारे रूल्स ऑफ बिजनेस लिखे हुए, आइन में लिखे हुए। मसला कहां आता है? जब आपके पास लोकल गवर्नमेंट का कोई आदमी आता है, अगले दिन से उसको पता ही नहीं, इख्तियारात की जंग छिड़ जाती है, मसाइल आ जाते हैं कि भाई मेरे पास ये है, ये नहीं है, इसलिए कि आइन ने सिर्फ 4 लाइनें लिख दी हैं आर्टिकल 140A। उस 4 लाइनों को वजीर आला, प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपनी मर्जी से उसकी तशरीह करते हैं और उसके पास कुछ भी नहीं होता। तो पाकिस्तान के लोगों की दहलीजों तक मसाइल के हल को पहुंचाने के लिए आईन में लोकल गवर्नमेंट का एक चैप्टर इंक्लूड करना लाजिम है। जिस तरह से वफाकी हुकूमत का वफाक की को चलाने के लिए फेडरल गवर्नमेंट का चैप्टर है, सूबाई गवर्नमेंट का चैप्टर है, इसी तरह से लोकल गवर्नमेंट का आईन में एक चैप्टर इंक्लूड होना चाहिए। अब ये करेगा कौन? आसमान से फरिश्ते तो आएंगे नहीं, यही इसी पार्लियामेंट ने करना है। पार्लियामेंट उस वक्त कर पाएगी जब आपस में मिलकर बैठ के बात करेंगे। ये हैं अवामी मसाइल, ये हैं अवामी इश्यूज जिनसे फिर आप हेल्थ रिफॉर्म करो, आप जुडिशरी रिफॉर्म करो, फिर आप एजुकेशन रिफॉर्म करो। खुदा के वास्ते 2.5 करोड़ बच्चे इस वक्त पाकिस्तान में जिनकी उम्र स्कूल में जाने की वो स्कूलों से बाहर हैं। 2.5 करोड़ की आबादी वाले दुनिया में 165 मुल्क हैं जो कि 2.5 करोड़ से कम की आबादी के, यानी हम इस मुल्क में जाहिल बच्चों की हमारी जो तादाद है वो 165 मुल्कों से बड़ी तादाद है। हमें दुश्मनों की क्या जरूरत है? कोई बात नहीं कर रहा इसके ऊपर। 44% स्टंटेड ग्रोथ है कि बच्चे का दिमाग नहीं बढ़ रहा ड्यू टू न्यूट्रिशन, उसको पानी नहीं मिल रहा, उसको ग़िज़ा नहीं मिल रही। फिर सबसे बड़ी बात कि हमारे पास पुलिस रिफॉर्म्स नहीं है, हमारे पास एजुकेशन रिफॉर्म नहीं है, हमारे पास लोकल गवर्नमेंट रिफॉर्म नहीं। ये वो काम है जो करने वाले हैं जो कि आवाम का जिनसे ताल्लुक है, लेकिन हुकूमत और अपोजिशन अपनी लड़ाई खत्म करने का नाम नहीं ले रहे। अभी तो इस महीने में के कैलेंडर में मुख्तलिफ डेट्स अभी लगी हुई है कि भाई फला दिन मुजाहरा होगा, लड़ाई होगी, फला दिन जुलूस निकलेगा, लड़ाई होगी। तो 2.5-3 साल ऐसे गुजर गए और अगले पता नहीं 2 साल भी इसी चक्कर में गुजर जाएं। एक सेकंड के लिए सोचें, ये जो ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है, इस तरह की हुकूमत, इस तरह की हुक्मरानी के ऊपर ये ब्यूरोक्रेसी तो एक फाइल साइन नहीं करेगी। उनको नहीं पता कि भाई आज हम इस हुकूमत की बात मानेंगे, कल को पता नहीं ये होंगे भी नहीं होंगे। हमने ये एडमिनिस्ट्रेशन चलाई है, आपको एतमाद देना पड़ता है ना। एक बात और मैं करना चाहता हूं कि इतना नादिर मौका था कराची की जो पार्टी है MQM, जिसके पास 7 सीटें थी, 7 सीटें हैं,
उनको वजीर आजम को एतमाद का वोट चाहिए था। आपको पता है कि कितनी थिन मेजॉरिटी है उनके पास। इस एतमाद के वोट बिल्कुल उनको देते, लेकिन वजीर आजम से एक गुजारिश करते कि वजीर आजम साहब, हमारे शहर की आबादी कम गिनती गई है और आपकी फेडरल कैबिनेट ने एक फैसला कर लिया है जो कि उसी गलत आबादी को इंडोर्स कर दिया है। खुदा के वास्ते आपके हाथ में है, ये किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, आपके हाथ में वजीर आजम साहब। इस डिस्प्यूटेड आबादी को डिस्प्यूटेड रहने दें। फेडरल कैबिनेट के डिसीजन को आप जो है वो मुअत्तल करें और 5% आइन में जो ऑडिट लिखा हुआ है उस ऑडिट को करवा लें। कराची के लोगों का मसला हल हो जाता। ये तो इतनी मुनासिब बात थी और आराम से वजीर आजम से इस मौके पे, जबकि वजीर आजम को एक एक वोट चाहिए, आपके पास 7 वोट थे, आप ये काम आसानी से आराम से करवा सकते थे। लेकिन अफसोस की बात है, वही पुरानी जो है वो डिमांड लिस्ट, वही पुरानी तकरीर, ये काम भी, ये मौका भी हाथ से जाने दिया, ये मौका भी हाथ से चला गया और कराची के लोगों की गलत आबादी के ऊपर एंडोर्समेंट जो हुई हुई है वो गलत ही रह गई है। ये बहुत बड़ा नुकसान है कराची के लोगों का। कराची की आबादी अगर सही गिनेंगे तो कराची की सीटें बढ़ेंगी, कराची को पानी ज़्यादा मिलेगा, कराची को पैसे एजुकेशन के ज़्यादा मिलेंगे, हेल्थ के ज़्यादा मिलेंगे। और कराची की जो पॉपुलेशन है वो इतनी पॉपुलेशन है कि सिंध की पॉपुलेशन का आधा इंसान कराची में रह रहा है, 50%। कराची जो जीतेगा फिर वो सिंध में हुक्मरानी करेगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो आज की नुमाइंदा जमातें हैं, इनको ये मौका था, ये मसाइल हल कर सकते थे। पाक सरजमीन पार्टी लोगों से ये कहना चाहती है, सारी पार्टियां फेल हो गई हैं। हमारे पास ही इस शहर कराची से लेकर कश्मीर तक और कश्मीर से कश्मीर तक पाकिस्तान के लोगों के हालात को बदलने का फॉर्मूला है। हमने प्रैक्टिकली शहर को चलाकर दिखाया है, जो कि 122 मुल्कों से बड़ा शहर है। हमारे पास काम की लेगेसी है, हमारे दामन पे कोई करप्शन का कोई दाग नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम पर इल्जाम लगा सकते हैं, साबित नहीं कर सकते। अल्लाह का शुक्र है, हमने इस कराची जैसे शहर को बनाकर दिखाया है। आज हमारे पास ये रिफॉर्म का एजेंडा पूरा मौजूद है। मैं तमाम पाकिस्तानियों से कहता हूं कि पाक से ज़मीन पार्टी का साथ दें। इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में सही मायनों में, हकीकी मायनों में तब्दीली, जो कि घरों पे लोगों के हालात चेंज होंगे, इंशाअल्लाह ताला पाक से ज़मीन पार्टी ही लेकर आएगी। आपका बहुत शुक्रिया। हम कोयटा में 19 तारीख को जलसा करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला बलूचिस्तान के लोग बड़ी तादाद में कोयटा के जलसे में इंशाअल्लाह ताला शरीक होंगे। अच्छा, 2.5 साल हो गए मौजूदा हुकूमत को और 2.5 साल से हम आपसे भी सुन रहे हैं कि आप वज़ीर आज़म को ये बार बार मशवरा दे रहे हैं कि अपोजिशन के साथ बैठ के कोई पॉलिसी बनाए। मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी कुछ समझ आती कि 2.5 साल तो हो गए उनको, वो क्या चाहती क्या है, हुकूमत किस तरह कर रही है? तो मुझे लगता है कि मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी मौजूदा हुकूमत को भी समझ में नहीं आती शायद, और मुझे तो, मैं कोशिश करता हूँ समझने की, लेकिन मेरे समझ में नहीं आती। इसलिए कि सबसे पहली बात है, जो हुकूमत होती है, जब हुकूमत में जब आ जाते हैं तो आप झुक जाते हैं, आप जो है वो लोगों को साथ मिलाकर चलते हैं, आप लड़ाई नहीं करते। लड़ाई तो अपोजिशन करती है। यहाँ तो हुकूमत खुद से लड़ाई के मौके हर दिन नए लड़ाई के मौके दे रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जो हुकूमत को सपोर्ट करने वाले लोग हैं या जो भी लोग हैं, जैसे भी लोग हैं, वो खुद इस रविश से बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। इसलिए कि उनको ये पता है कि ये मुल्क इस तरह से लड़ाई करके नहीं चल सकता, ये बादशाहत नहीं है। यहाँ पर इस मुल्क के जमहूरी निज़ाम को चलाने के लिए आपको एक इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की ज़रूरत है, जिससे मुल्क आगे चलता, आगे जाता। आपको कानून साजी की ज़रूरत है। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट कि इस मुल्क अभी तक जो ये हुकूमत इस रविश पे है कि वो अपने अलावा सब लोगों को वो चोर कहती है, अपने अलावा सब लोगों को डाकू कहती है, जबकि वो सब लोग भी इलेक्टेड लोग हैं। जबकि हमारे भी बड़े एतराज़ात हैं, पीपल्स पार्टी से भी एतराज़ात हैं, हमें PMLN से भी बड़े एतराज़ात हैं। लेकिन डेफिनेटली आज उनको लोगों ने वोट देकर असेंबलियों में भेजा हुआ है, हम लोगों के वोटों की कदर करते हैं। सर, ये बताइए कि 19 को तो आप कोयटा में जलसा कर रहे हैं, 18 को MQM ने नेशनल पार्क में अपने यौम तासीस के जलसे का ऐलान किया है और उनका कहना है कि हम रिवाइवल करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? कौन सी MQM की बात कर रहे हैं? किसने, कौन सी वाली MQM ने जलसे का ऐलान किया है? MQM पाकिस्तान ने सर। MQM पाकिस्तान का यौम तासीस तो 23 अगस्त नहीं है, 18 मार्च तो अल्ताफ हुसैन साहब की MQM का यौम तासीस है। ये जो 18 मार्च है जो MQM बनाई थी, वो तो अल्ताफ हुसैन साहब की MQM है। ये वाली जो MQM है, ये तो 23 अगस्त 2022, जब वो ठाकुर 22 तारीख को लेकर गए थे 2016 में, जो ठाकुर लेकर गए तो 23 तारीख की सुबह जब उन्होंने छोड़ा है तो 23 तारीख की सुबह MQM बनी है। तो इनका यौम तासीस तो 23 अगस्त होना चाहिए। 18 मार्च तो MQM अल्ताफ हुसैन साहब की यौम तासीस है।
तो ये नहीं पता कि लंदन की यौम तासीस मना रहे हैं, पाकिस्तान वाली मना रहे हैं। अगर लंदन वाली है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर पाकिस्तान वाली है तो उनकी तो यौम तासीस जो है वो, उनका तो यौम तासीस जो है वो 23 अगस्त से ठाकुर 22 तारीख को लेकर गए थे और 23 तारीख को जो है वो यौम एमकेएम पाकिस्तान बनी है। आप बार बार ठाकुर के ले जाने की बात करें, जिसको ठाकुर लेके गया था वो 23 को छोड़ा, वो तो है ही नहीं आज एमकेएम पाकिस्तान में। तो फिर तो बनती ही नहीं है, इसका मतलब है ये तो फिर 23 को भी नहीं बनती, फिर तो 23 को भी नहीं बनती, इसका मतलब है। बहरहाल निश्तर पार्क तो में तो हमारी गाड़ियों की पार्किंग होती है, जब हम जलसा करते हैं बाग जना में, वहाँ पार्किंग करते हैं हम। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।